Good morning, dear students. Let's start the new unit, unit number 6, thermodynamics. Dear student, let's see. Therm means temperature, dynamic means change. Means study of change in the temperature is no during the reaction. Temperature or heat is the synonyms of the one things. Okay dears. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो हीट का एनर्जी का जो चेंज हो रहा है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक. ओके. द रिएक्शन द प्रोसेस इधर फिजिकल और केमिकल. ओके डियर, इट स्टडी बेस्ड ऑन द थ्री जनरलाइजेशन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics. Okay dears, now application in the chemistry. Dear students, thermodynamics is the topic which is taught in the physics and the chemistry also. Okay dears, बिल्कुल सेम टॉपिक्स यहाँ भी होगा और सेम टॉपिक आपका फिजिक्स में भी होगा. Therefore यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री. ओके, तो ओके डियर, नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन it helps to us to deduce most of the law of physical chemistry like chemicals law of active mass, Raoult's law, want half law, equilibrium, law of thermochemistry, Nernst equation, phase rule, distribution law, etc. Most of the law of the physical chemistry can be explained on the basis of the thermodynamics. Okay dears, it helps to us to predict the feasibility of the process whether is proceed or not. It tells the thermodynamics. It tells कि रिएक्शन फिजिबल होगी, रिएक्शन टेक प्लेस होगी या नहीं होगी, ये कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताती है. ओके डियर्स, it helps to predict the yield of product, how much product is obtained, how much reactant is converted into the product, and what is the percentage of the product is predicted by the thermodynamics. Okay dear, now lot of the applications though the thermodynamics has some the limitations. First limitation is it is applicable to the bulk position. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, बट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. मीन्स ये एक जनरल थिंग्स तो बता दी, जनरल एप्लीकेशन तो है, बट इंडिविजुअल के लिए ये थर्मोडायनेमिक्स आपकी फेल हो जाती है. मीन्स कंपाउंड को तो बता सकती है, बट एटम और मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर एटम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये फेल हो जाएगी. इंडिविजुअल सिस्टम के लिए ये फेल हो जाती. इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, कि किस रेट से रिएक्शन होगी. ओके डियर्स, इट कंसर्न विद इनिशियल एंड फाइनल. ये ओरिजिन पॉइंट को और फाइनल डेस्टिनेशन को ये बताएगी कि ये है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बात करेगी, बट इट डज नॉट टेल्स अबाउट द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. ये इनिशियल फाइनल मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को तो बता देगी, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, बट रिएक्टेंट कैसे कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में ये बताने में ये फेल हो जाती है. मीन्स मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है. ओके डियर्स, नाउ थर्मोडायनेमिक्स terminology in thermodynamics. It is the most important topic in the thermodynamics. ये बेसिक फंडा है थर्मोडायनेमिक्स का डियर स्टूडेंट, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो. टर्मिनोलॉजी अगर आपको नहीं आती है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम 2 or 3 MCQ इन आर कमिंग इन द हाफ ईयरली एग्जाम फ्रॉम द टर्मिनोलॉजी ऑफ द thermodynamics. System and surrounding. Dear students, system is the body, is the part which is under consideration. ऐसा पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसकी स्टडी कर रहे होते हैं, द
part is known as the system, and the remain part of the universe and the rest part of the universe is known as the surrounding. Okay dears, like from the figure that the red part is the system which is under consideration, and the other rest part of around the system is known as the its surrounding, and the total of the surrounding and system is known as the universe. Okay dears. Now type of system is of three types. Open system, the system which can exchange both energy and matter with its surrounding. मतलब ऐसा सिस्टम जो लेन देन करता है एनर्जी का और मैटर का भी, मास का भी, विद इट्स सराउंडिंग के साथ बिल्कुल घुला मिला होता है, इज नोन एज द ओपन सिस्टम. बेस्ट एग्जाम्पल इज द आइस इन द ओपन बीकर और ए हॉट टी इन द कप. आप आइस को, एक आइस के टुकड़े को अगर आप ओपन बीकर में रख देंगे तो डियर स्टूडेंट you will see that the vapors and the heat are evolved from the ice. Okay dears, तो it is the open system. Now closed system कुछ limitations के साथ डियर स्टूडेंट, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग के साथ लिमिटेशन के साथ आपकी दो फ्रेंडशिप होती है. लाइक ये जो क्लोज सिस्टम होता है ये एनर्जी को तो एक्सचेंज कर सकता है बट मैटर को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता है. लाइक आइस इन द क्लोज बीकर, वही बीकर जिसमें आइस का टुकड़ा रखा था अब ऊपर से उसको क्लोज कर दिया गया, ढक दिया गया, ढक्कन से ढक दिया गया. देन स्टूडेंट यू विल सी दैट द एनर्जी इज रिलीज बिकॉज द wall of the beaker is conducting. Okay, or but mass vapor is condensed again and dropped in the ice. Isolate system is the fully controlled system, free by mass and energy. मतलब ना तो एनर्जी को आप ये एक्सचेंज कर सकता है ना मास को एक्सचेंज कर सकता है विद सराउंडिंग. द बेस्ट एग्जाम्पल इज द हॉट पॉट या आइस इन द थर्मस फ्लास्क. ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ फिगर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है. देखिए ये ओपन सिस्टम है जो एनर्जी और मास दोनों को एक्सचेंज कर रहा है, और यहाँ पे क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, और यहाँ पे आइसोलेट सिस्टम में नाइदर एनर्जी नॉर मास कैन बी एक्सचेंज विद इट्स environment. Now second terminology is the state of a system or state function, the quantity, the measurable quantity which depends upon the state of the system is are known as the state function or state of the system, like temperature, volume, pressure, etc. कोई भी dear student to see the thermodynamic properties, thermodynamic parameters which depend upon the state, initial or final system of the system, not on the path, वो path पे depend नहीं करेगा, are called the state function. Example pressure, volume, temperature, internal energy, enthalpy, entropy, Gibbs free energy, etc. Dear students, जैसे आप घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए, तो घर से कॉलेज जाना, घर से और कॉलेज मतलब आपका जो क्या कहते हैं डिपार्चर है, जो आपकी रनिंग है वो केवल कहाँ से है, घर से कॉलेज तक. बीच में बस कहाँ कहाँ जा रही है ये मैटर नहीं कर रहा है. अगर घर पे पूछा जाएगा कि आप कहाँ गए तो कॉलेज गए, कॉलेज से छुट्टी के बाद आप कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं. अब घर से निकले तो रात से निकले आप तो आए, आप हमीरपुर चुंगी आए, हमीरपुर चुंगी के बाद औरई स्टैंड आए, औरई स्टैंड से आप चौकी पे आए, फिर आप पेट्रोल पंप पे आए. तो ये सारे मैटर नहीं करेंगे. आप मैटर ये करेगा कि घर से निकले कॉलेज गए, कॉलेज से निकले घर आए. तो इट इज़ द पैरामीटर्स इज नोन एज द स्टेट फंक्शन, जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं. ये आपके पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं. वर्क एंड ही इज़ नॉट द स्टेट फंक्शन बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द प्रोसेस. नाउ थर्ड टर्मिनोलॉजी इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, द ऑपरेशन बाय विच ए केमिकल और फिजिकल रिएक्शन is proceed
और इस सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, ऐसा कोई भी ऑपरेशन जिसके थ्रू सिस्टम एक फॉर्म से दूसरी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, द ऑपरेशन इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ द प्रोसेस, आइसोथर्मल, डियर स्टूडेंट्स, आइसो मीन्स होता है सेम, थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर, ऐसी प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर मीन्स देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। आइसो डियर आइसो मीन्स होता है क्या आपका सेम, और थर्म मीन्स क्या होता है, थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर डियर, टेम्परेचर, और टेम्परेचर मीन्स ड्यूरिंग द इनर रिएक्शन सेम टेम्परेचर रहे, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर इज नोन एज द आइसोथर्मल रिएक्शन, देयरफॉर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा टी इज जीरो, Similarly, now next adiabatic, adia means होता है dear student heat, during the process the heat is constant, heat will remain constant, then the process is known as the adiabatic constant, therefore delta q heat change zero। isobaric, bar means होता है प्रेशर, आइसो मीन्स सेम, बार प्रेशर सेम रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे, देयरफॉर डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक, आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेन सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नोन एज द आइसोकोरिक प्रोसेस, वी कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा वी जीरो। साइक्लिक प्रोसेस, घर से ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से ए में वापस आ गया। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी रिएक्टेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स के थ्रू पुनः वो मतलब फिर से वो अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाता है, द रिएक्शन इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस। और जो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई एनर्जी चेंज जीरो, एंथैल्पी चेंज जीरो। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स मीन्स द रिएक्शन विच हैव बोथ डायरेक्शन, और reactant mean or reactant convert into product and product convert into reactant। okay dear, these proceed both direction। जो completion time होता है इनफाइनाइट होता है डियर स्टूडेंट, इस क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेगा, तो रिएक्शन प्रोसीड ही होती रहेगी हमेशा, एंड गो ऑन इनफाइनाइट समय तक। Equilibrium is found, equilibrium is the state at which the rate of reaction is equal to the rate of forward reaction equal to the rate of backward reaction। okay, now irreversible process is the unidirectional, means reactant convert into the product doesn't convert into reactant। ओके डियर्स, यूनिडायरेक्शनल होती है, और जो कंप्लीशन टाइम होता है वो फाइनाइट होता है। नेचुरल प्रोसेस, जो भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। नेचुरल प्रोसेस के लिए कोई भी ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ओके डियर, नाउ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके डियर्स, नाउ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द मास, अपॉन द अमाउंट, upon the moles of the reactant, moles of the substance is known as the extensive properties, like volume, energy, mass, work, internal energy, enthalpy, entropy, etc। dear students, for example 1 liter milk 1 liter milk ही होगा, 2 liter milk होगा, 5 liter होगा। मतलब वॉल्यूम डिपेंड करेगा उसके मास पे, जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, अब वॉल्यूम, हम मास की बात करें, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। ओके, क्वांटिटी बढ़ेगी मास बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा वर्क बढ़ेगा। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी। ओके डियर्स, नाउ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच इज independent, which does not depend upon the mass, amount or moles of the substance is known as the intensive properties। example temperature, pressure, concentration, density, viscosity, surface tension,
और स्पेसिफिक हीट्स। ओके डियर, तो डियर स्टूडेंट टेम्परेचर मीन्स 1 बकेट अगर आपका वाटर लेते हैं आप फॉर एग्जांपल, तो उसमें से आप 10 ml निकालें चाहे 1 लीटर निकालें, उसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। ओके, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर उसका हम आप प्रेशर देखें तो वो भी सेम होगा, चाहे 1 लीटर हो चाहे 10 लीटर वाटर हो। ओके, कंसंट्रेशन सेम रहेगी, डेंसिटी सेम रहेगी, होल द वाटर इन द ऑफ द बकेट। नाउ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल और इंट्रिंसिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय ई और यू। It is the total energy stored in the substance according to their mass. Its mass is known as the internal energy. Dear students, हर substance के पास, हर things के पास, living non living चाहे कुछ भी हो, उसके मास के अनुसार एक एनर्जी होती है उसके पास। द एनर्जी इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी। द एनर्जी इज द सम ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी, प्रेजेंट इन द substance. Okay dears, okay, it is represented by capital E और U. It is state function, स्टेट पर डिपेंड करती है, मीन्स ये डिपेंड करेगी प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट जिस रिएक्टेंट पे कन्वर्ट हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। देयर फोर चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू del E equal to EP minus ER, where is the del E is the change in the internal energy, EP is the internal energy of product, and ER is the internal energy of reactant. एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डियर स्टूडेंट्स आपने टेंथ में पढ़ा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। एंडो मीन्स होता है डियर स्टूडेंट, एंडो मीन्स होता है इंटर करना। एंडो मीन्स क्या होता है? इंटर। और थर्मिक, थर्म मीन्स मैं पहले से बता रहा हूँ कि थर्म मीन्स क्या होता है आपका एनर्जी, और टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर बोलें या हीट बोलें एक ही चीज़ है, हीट बोलें। ओके, तो हीट का इंटर होना ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नोन एज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। और हीट का एक्सो मीन्स होता है, एक्सो मीन्स होता है एग्जिट करना, और हीट का एग्जिट होना ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नोन एज द एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अब नहीं भूलना डियर कभी। एंडो मीन्स इंटर, थर्म मीन्स टेम्परेचर या हीट, एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्म मीन्स टेम्परेचर और हीट। ओके, तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन डियर, एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? प्लस पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी डियर? देखिए, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल ई की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन all the things in the product in the reactant size are equal to the things of the product side. Therefore the energy of reactant is equal to energy of product. ओके, अगर हम ये बात करें आपकी कि अगर एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा है, एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट की साइड में क्या होगी? वो रिलीज होगी, इवॉल्व होगी, एग्जिट होगी। मीन्स ये कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब है कि वो क्या हुआ? एनर्जी इवॉल्व हुई। मीन्स इसमें रखिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ओके डियर्स, एंडोथर्मिक में मीन्स क्या हो गया? रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, देयरफॉर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी रिएक्टेंट साइड में। मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी कम, देयरफॉर ईपी की वैल्यू ज़्यादा, ईपी की वैल्यू ज़्यादा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके डियर, फॉर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मटेरियल जितना स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल जो मटेरियल होगा उसकी आपकी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी। यूनिट्स कैलोरी एमकेएस सिस्टम, जूल्स एसआई सिस्टम, अर्ग सीजीएस सिस्टम। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स इज इक्वल टू इज एज 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल इक्वल टू 4.184 इंटू 10 to the power 7 अर्ग। ओके डियर्स, तो इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी
इम्पॉर्टेंट है, इस पर सीधे MCQ पूछा जा सकता है डियर्स। ओके, नाउ वर्क एंड हीट इट आर द मोड ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वर्क के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में। नाउ वर्क इज़ द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम विद ए रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग। हीट का ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र एज ए वर्क फ्रॉम सराउंडिंग सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, वाइस वर्सा। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके डियर, यू नो वेल। According to the thermo, the work is of two types, electrical work and mechanical work, or also known as the pressure volume work. The work done when the system or gas expand or compress, या तो सिस्टम एक्सप्रेस हो या कंप्रेस्ड हो अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द वर्क ऑब्टेन इज नोन एज द मैकेनिकल वर्क और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके डियर्स, तो इट इज़ द मैकेनिकल और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नेक्स्ट टर्न पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।